Earth, a watery planet. The color of the earth seems to be blue because the blue part is covered with water. Without water, our life would have been impossible on this earth. The earth's two-third part is covered with water. Even then, many countries around the world face acute shortage of water. Around 97% of the total water on earth is saline. All the oceans, bays like Bay of Bengal and gulfs and all the seas have saline water, that is marine water, that is also known as marine water, and a large quantity of salts are dissolved in it, which makes it unfit for our use. So 97% of the water on earth is saline, and around 2% of the water is available in the form of glaciers, ice sheets, and this water cannot be accessed by us. So the water for our use is only 1%. Water is considered as a flow resource because it is inexhaustible. There is a water cycle which makes it always available. So there is evaporation, then there is condensation, then there is precipitation, then again there is collection, then evaporation, condensation, precipitation. So it makes availability of water. The water on the earth is highly unevenly distributed. Like somewhere there are floods due to excess rainfall, and somewhere there are deserts due to lack of rainfall. So on earth the rainfall is very much uneven. Somewhere it rains very well and that causes flood, but somewhere it also creates desert due to lack of rainfall. So the rain is very much unevenly distributed everywhere, even in India. In India, there are deserts, there is coastal areas, there are like Himalayas, there are northern plains, there is Deccan Plateau, and the availability of water is really different in each and every part of India. Now let's talk about Sahara Desert. Very scanty rainfall is there. Then we will talk about the Australian Desert, Great Australian Desert. In Australia, the middle part of the Australia is desert. All the famous cities like Sydney, Melbourne are situated in the coastal areas of Australia, and the mid part, the central part of Australia is actually a desert. Now let's talk about the water resources in India. So in India, the rivers are one of the most important water resources. Like in this map, you can see Ganga, Yamuna, then you can see near Gujarat, Narmada, Tapti, Mahanadi, then come down, then you will see Godavari, then Krishna, Tungbhadra, Godavari. So these are one of the most important rivers of India. Well, there are many rivers in India, but these are the major rivers, one of the largest rivers of India. Apart from the rivers in India, there is enough rainfall, but the rainfall in India is not same in every part of the country. Like somewhere in India, there is 300 centimeter of rainfall per year, but somewhere in the northwestern part of India, it is only 50 to 70 centimeter per year. So the rainfall in India is really unevenly distributed. Apart from the rainfall, there are other sources of fresh water in India, and the lake is one of the important source of fresh water in India. There are many lakes found in Himalayan region which generates because of the melting of ice sheets from Himalayas. Now let's talk about multi-purpose river valley project.
देखते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पानी आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली ये एक डैम है और एक बहती हुई रिवर पे डैम बनाया जाता है। इसी डैम को कहते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब इसको मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं? क्योंकि डैम बनाने से हम इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये तो पानी गिर रहा है, बट इसके पीछे ये जो बहुत बड़ा ये वाटर बॉडी एक बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड रिजर्वोयर। इसको कहते हैं रिजर्वोयर। और इस रिजर्वोयर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फिशरीज़ हो सकती है यहाँ पे। और ये जो बैक साइड में जो रिजर्वोयर है, हमें जितना वाटर ज़रूरी होगा उतना ही वाटर हम इधर आने देंगे। जैसे इरिगेशनल पर्पसेस के लिए हम यहाँ से कैनाल्स बना सकते हैं और जितना वाटर ज़रूरी है उन कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, इस डैम में भी ये बहुत बड़ा रिजर्वोयर दिखाया जा रहा है और ये बीच में एक रोड बनी हुई है जहाँ से व्हीकल्स भी पास हो रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम अभी आगे देखेंगे कैसे होता है ये। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, मैंने अभी आपको बताया कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन में काम में आता है। इसके बाद फ्लड कंट्रोल, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है किसी रिवर से, हम वहाँ पर अगर डैम बना देंगे तो हम फ्लड को आने से कंट्रोल कर लेंगे, हम पानी को वहीं पे रोक लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। नेविगेशन, नाव वगैरह उसमें चलेगी, बोटिंग वगैरह, तो नेविगेशन के काम में आएगा। फिर फिशरीज़ वगैरह वहाँ पे हो सकती है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। देन सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन भी होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़। नाउ विल सी कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, रिजर्वोयर दिखाया गया है। रिजर्वोयर से नीचे से एक वाटर चैनल निकाला गया है। यहाँ पे नीचे ये जो मशीन दिख रही है, मोटर टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली टरबाइन है और ये वाटर आ रहा है और ये टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने से ऊपर जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो बिजली बनती है वो उसमें स्टोर की जाती है और वहाँ से फिर उसको पावर हाउस में भेज के और पावर लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। वाटर स्पोर्ट्स, जो रिजर्वायर होता है उसमें ये जो स्कूबा डाइविंग वगैरह होता है, या ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी पूरे वर्ल्ड के लिए। वाटर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का बेसिक रिसोर्स भी होता है, बट जब ये वाटर उनकी फैक्ट्रीज़ में से वेस्ट बन के निकलता है तो वो वाटर बहुत ही ज़्यादा डर्टी, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। इसको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट भी कहते हैं। जब ये वाटर निकलता है, इट पोल्यूट्स द रिवर वेरी वेरी मच, और ये रिवर को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। यू कैन सी ऑल द पिक्चर्स हियर एंड ऑल दीज पिक्चर्स, दिस इज़ ओशियन, ये ओशियन है। हियर यू कैन सी, तो दीज आर द consequences of the water pollution. We should try to not pollute the water as far as it is possible. नहीं तो ये पृथ्वी की जो नदियाँ हैं वो नहीं बचेंगी। Now we'll talk about, do we waste water? The answer is yes. I have already explained you that only 1% of total water प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और उस 1% वाटर को भी हम कितना वेस्ट करते हैं। लाइक जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, हम नल खुला छोड़ देते हैं। व्हेन वी वॉश आवर हैंड्स, द टैप इज़ लेफ्ट ओपन। दिस वे ह्यूमन वेस्ट वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम। वेस्टेज ऑफ वाटर के परिणाम क्या होंगे? लाइक इन राजस्थान, इन गुजरात, मेनी पीपल, मेनी विलेजेस, मेनी ट्राइब्स face acute water shortage problem, even drinking water shortage, they do not have access to drinking water. आपको याद रखना चाहिए, जब आप अपने नल को खोलकर पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, उसी समय देश के कुछ हिस्सों में लोग इतनी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर जाके
पानी भर के ला रहे होते हैं. सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट. You should be sincere about the water. Let's talk about conservation of water. पानी का संरक्षण कैसे हो सकता है? इसका एक बहुत आसान तरीका है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. सो रूफटॉप मतलब छत के ऊपर. रूफटॉप से समझ में आ रहा है, छत के ऊपर जब बारिश होती है तो जनरली हमारे जो पाइप्स होते हैं उससे पानी नीचे गिर जाता है और वो रोड पर बह जाता है. इसको कहते हैं सरफेस रन ऑफ. सो अगर हम इस सरफेस पर जो पानी आ रहा है, अगर हम अपने छत पे एक पाइप जो पानी गिराने के लिए लगाते हैं, अगर उसी पाइप से हम एक नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना लें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा टैंक बनाया हुआ है और इसको रिचार्ज फैसिलिटी में डाला हुआ है. रिचार्ज फैसिलिटी मतलब ये हमारे घर के जो अंडरग्राउंड, हमारे घर के नीचे लैंड है, सोइल है, और सोइल में अंडरग्राउंड वाटर है जहाँ से हम हैंडपम्प के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू पानी बाहर निकालते हैं. सो अगर इस रिचार्ज फैसिलिटी में हम डालें तो यहाँ पे जो हमारे छत पे आया हुआ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उस रिचार्ज फैसिलिटी में जाएगा. मतलब हमारे घर के आसपास का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जो गर्मी में कम होता है, वो इंक्रीज होगा. दिस मैकेनिज्म इज नॉट टू मच एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगा तरीका नहीं है. सिर्फ आपको कुछ पाइप्स अरेंज करना है, एक गड्ढा खोदना है और उसके अंदर पानी इकट्ठा करना है. देन अगर आप टैंक्स में भी, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक स्टोरेज टैंक दिखाया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखता है कि इसमें जमा करके भी आप गार्डनिंग, प्लांट्स में वाटरिंग करना या कोई अटेंसिल्स वगैरह वॉश करना या टॉयलेट्स में डालना, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. So that's it in this video. You can ask your questions in comments. I'll definitely answer those. So thank you. The end here.